अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे सरकार का और बधाई देंगे कि उनकी प्रयासों और योजनाओं के वजह से मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी कम होके 33 पर लाख लाइफ बर्थ पे आ चुका है। हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सर्वाइकल कैंसर की ओर, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट का एक बहुत बड़ा वजह है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए हो चुकी है। वित्त मंत्री जी ने भी अपने 2024 के बजट के भाषण में कहा था कि HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है उसको राष्ट्र प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि सर्वाइकल कैंसर से आज लगभग 20% महिलाओं की मौत हो जाती है और WHO ने भी ये कहा है कि अगर HPV वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा तो उससे लगभग 16 गुना आर्थिक लाभ देश को होगा। मेरा प्रश्न ये है कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब तक इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है और वंचित शोषित वर्ग से आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं उसमें हमारी सरकार ने जो भी हमारी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जो चिंताएं माननीय सदस्य ने व्यक्त की हैं हम उससे पूरा सरोकार रखते हैं और HPV वैक्सीन को लेकर अभी सरकार तमाम प्रकार के चिंतन मंथन कर रही है। ये प्रक्रिया में है। जैसे ही इसके संबंध में कुछ तय होगा हम सदन को सूचित करेंगे। और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये इस विषय से संबंधित नहीं है, इस पर हम अलग से बैठ के बात भी कर सकते हैं। श्री केशव वेणुगोपाल। Thank you, Speaker sir. Through you, I would like to invite the attention of Honorable Experienced Minister and Learned Minister on a serious matter, sir. For we have so many schemes. For example, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram. In my constituency, sir, last 2 months before one incident happened. That's why I bring into your notice that serious issue. One daughter of one named Anish, unka daughter, his wife has been delivered a newborn child with serious problems. The mouth cannot be opened. She cannot raise her hands. Basically, she is not in a position to live. When the issue came into the media, public, everywhere, but during the pregnancy period, 4 times doctors advised to go for scanning. They done scanning. The scanning didn't find out any problem for this lady. Then why it is happened? This is the question. All over Kerala, that question arises. Government is giving fund. Enough fund is giving. She treated in the government hospital also. The problem is that either they are not caring much or there is a nexus between the hospital and the scanning centers. Proper, this is not happening. This is become now that child is in a critical Honorable condition. Member, please. Critical condition. My question to the minister, whether the minister has to put up any strong mechanism to monitor these schemes are going to benefiting on proper way to the concerned people. This one. As I told that we have got a very robust system of monitoring, and that is why, because of that, the results, as said, that is better than the global outcomes. Honourable member has talked about his individual case. I don't know about that individual case, but certainly if you can give me in writing, I'll get it inquired, go into the details of it and see what rectification can be done by the state government, state health department, because the execution part is with the state department. So I'll discuss with them. You give me the details of that case. I'll inquire into the matter. Question number 6262, श्रीमती लवली आनंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर बोल दो पहले तो। 62, आप तो अनुभवी हो। 62
ये है कि विगत सभापति पर रख दिया है। हाँ, माननीय सदस्य पूछें। ये है कि विगत 5 वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार की उर्वरकों की अधिक खपत वाले बिहार जैसे राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गौ है कि क्या सरकार आयातित उर्वरकों की कीमत कम होने के कारण देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक नहीं है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 7 अक्टूबर से को 2014 में हम लोगों ने 6 नए फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाने का निर्णय किया, जो 4 पब्लिक सेक्टर में थे, 2 प्राइवेट सेक्टर में थे। एक रामागुंडम में जो तेलंगाना में, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी में, एक बरौनी में, और जो प्राइवेट है वो राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से लगभग हर एक उर्वरक में, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की कैपेसिटी में लगभग 12 लाख मेट्रिक टन बढ़ाने का हम उसमें उसकी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के 76 लाख मेट्रिक टन 6 न्यू प्लांट्स में बढ़ा और 2014 में हमारी जो कैपेसिटी थी वो 225 लाख मेट्रिक टन थी। इसी बीच में गैसिफिकेशन के माध्यम से भी और एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए इन्हीं प्लांट्स की कैपेसिटी को 20 से 25 लाख मेट्रिक टन और बढ़ाया गया और अब हम 315 लाख मेट्रिक टन के हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।